Good morning. Today we will see next chapter, that is memory management. Before now we have seen deadlock, deadlock avoidance, necessary condition for deadlock, and for what reason we have seen the necessary condition for deadlock, so that we can avoid the deadlock by avoiding those conditions. After that we have seen Banker's algorithm. It was invented by Dijkstra. In that, important topics were means short points were allocation, available, max, need. Then we have seen if the system is going in deadlock, then it is unsafe, or else means no deadlock, then it is safe, and all that. There is a small part which is something like additional part from the G scheme also: deadlock detection, deadlock recovery, which is never asked in an exam, so we will cover it after finishing our syllabus. Now we will move to the next chapter. जो ऐसा टॉपिक है जो डिपेंड है प्रीवियस ओवरऑल चैप्टर पे ही, बट वो कभी पूछते नहीं, आज तक तो नहीं पूछा है, इंक्लूडिंग जी स्कीम एंड आई स्कीम. सो बेटर वी विल स्टार्ट विथ अ नेक्स्ट चैप्टर विच इज important and which is also important with respect to overall flow of the operating system, which we have to cover in our full subject. Okay, the part 2 or 3 pages which are remaining we will cover after completion of syllabus. Now tell me, what do you mean by memory management? Just remember up till now what we have seen: overview of a operating system, services of a operating system, process management, then CPU scheduling. Means whatever we are having in a operating system or a computer, or what is needed by operating system, we are managing that in our full syllabus. So right from first chapter many times I have told कि आपको एक ही साथ पे क्या कर रहे हैं वो नहीं समझेगा, एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट वर्क कर रहा है. लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा आपका, वैसे आपको प्रीवियस चैप्टर का आइडिया क्लियर होगा. मैं ये पहले बोलता था ऑपरेटिंग सिस्टम ये करती है, सिस्टम कॉल, फिर आता था पीसीबी. लेकिन पीसीबी की वैल्यू क्या है वो कंटेक्स्ट भी समझा तभी आया. सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट. सो वी विल try to remember very clearly, so all our concept according to for our future as well as for our MSBT examination mark will be clear. Now next and fifth chapter is memory management. Again I am telling, take a book and start reading if you have not started yet. अगर बुक नहीं है तो खरीदो, अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी धीरे धीरे सब खुल रहा है. आपकी एग्ज़ाम आएगी जो थ्योरी ही होगी. ऐसा मत समझते बैठना कि गूगल फॉर्म पे एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन होगी, ये होगी. आपकी थ्योरी एग्ज़ाम ही होगी, भरी 15-20 दिन आगे पीछे, लेकिन होने वाली है तो आपकी थ्योरी एग्ज़ाम ही होने वाली है. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट. आपको पढ़ने को हो रहा है, अगर आपके पास बुक नहीं है, इसके लिए मैं ये फ़ोटो भेज रहा हूँ. क्या है कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम there may be multiple processes executing at the same time. Every process needs some amount of memory. सिंपल कंसेप्ट है. अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप जब भी वीडियो देखोगे तभी बहुत सारी सर्विस एक्टिव रहेगी, प्रोसेस एक्टिव रहेगी. जैसे वीडियो डिस्प्ले करना, ऑडियो, बैकग्राउंड में नेटवर्क सर्विसेज एंड ऑल दैट. पर कोई भी सर्विस या फिर प्रोसेस हवा में तो नहीं रह सकती. Even a single dot requires memory. So concept is clear कि whatever processes we have need some memory. है तो मेमोरी अपने पास. कंसेप्ट क्या बोलता है, अपने पास मेमोरी अनलिमिटेड तो है नहीं, मेमोरी है अपने पास लिमिटेड. इन दैट लिमिटेड मेमोरी
we have to manage different processes. So memory management, it was the function of the operating system. फर्स्ट चैप्टर में आप लोग ने देखा है. सो कौन से टाइम पे कौन सी प्रोसेस आएगी मेमोरी में, आएगी कि भी नहीं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है मेमोरी की वो फुलफिल हो सकती है कि नहीं हो सकती, बाद में वो मेमोरी में आने के बाद कितने टाइम तक रुकेगी, वो अगर आती है तो एडिशन में कुछ स्पेस बचती है कि नहीं बचती है, ये सब करना, या फिर वो कैसे आएगी, स्टैटिकली आएगी कि डायनामिकली आएगी, ये सब आपको किस में देखना है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में. मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द फंक्शनैलिटी, ये देखो, ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स और मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी, जो क्या करती है, हैंडल करती है और मैनेज करती है, किसे, प्राइमरी मेमोरी को, और मूव करती है. मूव करना है मतलब क्या, यहाँ से वहाँ पे लेके जाना है. तो थोड़ा सा कंसेप्ट वापस से शेड्यूलर का याद करो. मेमोरी में जो प्रोसेस नहीं है वो कहाँ पे रहती है, आउटसाइड पे. आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया था, क्लासरूम, कॉलेज और आउटसाइड वर्ल्ड. मिड टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. तो यहाँ पे बाहर की प्रोसेस मीन्स डिस्क के ऊपर है, वो स्टोरेज के ऊपर है, वो मेमोरी में लेके आना. मेमोरी के पास जो प्रोसेस है उसे फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी कंडीशन बाहर लेके जाना, मतलब बाहर मतलब कहाँ पे, वापस डिस्क के पास. यही चीज़ क्या हो गई आपकी मेमोरी मैनेजमेंट. टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ CPU एंड स्पीड ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू यूजर, वी मस्ट कीप सेवरल प्रोसेसेस इन अ मेमोरी. अगर सब प्रोसेसेस कहाँ पे है, मेमोरी में है, तो वो क्या हो सकती है, आपका प्रोसेसिंग स्पीड फास्टर हो सकता है. मेमोरी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेशन ऑफ मेमोरी, वो क्या है, और फॉर एंड प्रोटेक्टिंग द मेमोरी, मतलब कोई भी प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट करना है, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस, देन मेमोरी शुड बी allocated for that process, and after allocating that memory it should be keep as it is. नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको मेमोरी असाइन की, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपकी मेमोरी अचानक से विड्रॉ कर रही, नहीं. along with the allocation of memory space, memory management also performs activity as upgrading the performance of computer, एग्जीक्यूटिव मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम, डिफरेंट टाइप के काम भी उसको साथ में करने हैं. सो आपको कंसेप्ट समझा मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, वो कि एन इफेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर क्या करती है, एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा इम्पोर्टेड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द मेमोरी. मुझे 10 MB चाहिए तो 10 MB ही चाहिए, ज़्यादा अलोकेट की वेस्ट होगी, कम अलोकेट की आपका काम नहीं हो सकता, अलोकेट ही नहीं हो सकती. फिर वो 10 MB की 10 MB अलोकेट की, लेकिन वो आगे चल के कम ज़्यादा हो, ऐसा भी ना हो. यही चीज़ हो गई आपकी कंसिस्टेंसी. सो ओवरव्यू ऑफ अ मेमोरी, एक डायग्राम है, आपको सिंपल है समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ. Now we will see overview of a memory. Memory in a computer system is used to store data and instruction. बराबर है. आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम में क्या होता है, लिखने के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लगता है, पर उसमें दो ही चीज़ें होती है. कौन सी, एक तो आपका डेटा, दैट इज इंफॉर्मेशन, और डेटा के ऊपर काम करने वाला कोड या फिर उसकी इंस्ट्रक्शन. ये छोड़ के कुछ होता है क्या प्रोग्राम में, नहीं. कभी कभी सपोर्टिंग कोई तो फाइल्स रहती होगी तो. एंड इट इज स्टोर स्पेस इन अ कंप्यूटर. अभी ये सामने आपके एक डायग्राम है. कोई भी चीज़, जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था कि आप कितना भी कुछ करो, एवरीथिंग शुड बी एंटर इन अ मेमोरी एंड देन ओनली इट कैन बी परफॉर्म और एग्जीक्यूटेड बाय द CPU. जो इनपुट से कुछ आएगा वो मेमोरी के पास जाएगा. ये डायग्राम देखो. CPU कहाँ से वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, डायरेक्ट कीबोर्ड से नहीं करेगा, कोई आउटपुट इनपुट डिवाइस के पास भेजेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा.
वो कैसे करेगा, वाया। वाया कौन आता है बीच में, मेमोरी। तो CPU fetches instruction from memory according to the value of a program counter। ये प्रोग्राम काउंटर नाम की चीज़ कहाँ पे थी, वापस से देखो PCB में एक था प्रोग्राम काउंटर। दिस इंस्ट्रक्शन में कॉज एडिशनल लोडिंग फ्रॉम एंड स्टोरिंग टू स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस। इसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल मेमोरी लोकेशन वगैरह होगा। मेमोरी मैनेजमेंट इज अचीव्ड थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या रहता है, इसे भी कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रोग्राम लिखना है, तो उसके पहले आप स्टेप लिखते हो, वो स्टेप से ही जाना होता है। या फिर यू कैन से इफ़ वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू दो स्टेप देन इट विल बी बेटर टू सॉल्व दैट प्रोग्राम। सिमिलर वे कोई भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हम लोग को करनी है तो उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम चाहिए। ईच मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम रिक्वायर्स इट्स ओन हार्डवेयर सपोर्ट। क्योंकि ये पूरा हार्डवेयर का पार्ट है तो हार्डवेयर सपोर्ट तो चाहिए ही। बोथ CPU एंड IO इंटरैक्ट विद द मेमोरी। देखो दिख रहा है आपको सामने, CPU इंटरैक्ट किसके साथ कर रहा है, मेमोरी के साथ। IO सिस्टम किसके साथ इंटरैक्ट कर रही है, मेमोरी के साथ। तो ये टाइम पे क्या होता है, मल्टीपल टाइम रीड एंड राइट। CPU कुछ तो रीड करेगा तो एज ए इनपुट हुआ, CPU कुछ तो राइट करेगा तो वो आउटपुट हुआ, बराबर है। अभी सेम टाइम पे इनपुट आउटपुट में इनपुट कुछ तो देगी, वो उसके लिए आउटपुट होगा, और आउटपुट उसके पास आएगा, वो उसका इनपुट होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप देखो क्या है कि एड्रेस इन अ सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम मतलब क्या है, ये डायग्राम रिफर करो जो आप लिखते हो वो हर जनरली सिंबॉलिक। वो क्या रहता है, सिंबॉलिक रहता है। उसके बाद कौन काम करेगा, दिख रहा है यहाँ पे, कंपाइलर और असेंबलर। कंपाइलर विल टिपिकली बाइंड दिस सिंबल एड्रेस टू रीलोकेटेबल। अभी आप सामने नहीं हो, बुक नहीं तो मैं आपको शॉर्ट में अंडरलाइन करके दे देता। क्या है, सबसे पहले याद रखो सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम के बाद कंपाइलर। कंपाइलर किस में करेगा, कन्वर्ट उसको रीलोकेटेबल एड्रेस। उसके बाद कौन दिख रहा है, देखो मतलब ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बना। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के बाद कौन है, तो आपका लिंकेज एडिटर। तो लिंकेज एडिटर विल बाइंड दिस रीलोकेटेबल एड्रेस। रीलोकेटेबल एड्रेस कहाँ से मिले हैं मुझे, ऊपर से मिले, टू द एब्सोल्यूट एड्रेस। मतलब वो कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, एब्सोल्यूट एड्रेस। ईच बाइंडिंग मतलब जो बाइंड किया हुआ है, इज मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। दीज एब्सोल्यूट एड्रेस आर लोडेड इनटू मेमोरी। मतलब मुझे क्या चाहिए थे, एब्सोल्यूट एड्रेस। मेरे पास क्या था, सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर करके मैंने क्या किया, मेमोरी में जो एड्रेस स्टोर हो सकता है वो फॉर्मेट में रख के आया। एज प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स इट एसेसेस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो एक ही जगह पे थोड़ी रुकेगा, एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा लगेगा, डेटा के साथ इंस्ट्रक्शन लगेगी, ऐसा कर करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और जब भी प्रोग्राम टर्मिनेट था, अभी सब कुछ कहाँ पे आ गया, आपके मेमोरी में। प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, जैसे आपका डिप्लोमा ख़त्म हुआ तो आप कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, यहाँ पे तो बैठोगे है नहीं। सिमिलर वे जैसे भी प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया उसके बाद हम लोग को क्या करना रहता है, तो उसको डिलीट करना रहता है, या फिर टर्मिनेट किया हुए प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेशन निकाल देना रहता है। सो फॉर फ्यूचर यूज अनदर प्रोग्राम कैन बी यूज इट। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ अ मेमोरी। समझा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब ये वीडियो मैं पर्पज़ यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि 2 बार प्रॉब्लम हुआ, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल एरर आया था कुछ, तो इसलिए टर्मिनेट करके अपलोड करता हूँ, वापस से इसके आगे का एक छोटा पार्ट में अपलोड करता हूँ।